Hello students, I am back with my next video lecture, and in today's lecture we are going to discuss Heisenberg's uncertainty principle. Okay, as we were studying the foundations which lead to the quantum mechanical model, and in those foundations we have to study two phenomena. One is de Broglie hypothesis, which we had studied in last video. Okay, and the second foundation of the quantum mechanical model is the Heisenberg's uncertainty principle. Heisenberg uncertainty principle states that it is impossible to measure simultaneously the position and momentum of small particles with absolute accuracy or certainty. मीन्स आप पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ इकट्ठे किसी माइक्रोस्कोपिक या एटॉमिक पार्टिकल की मेजर नहीं कर सकते विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी, मतलब दोनों एक्यूरेटली आप मेजर नहीं कर सकते पोजीशन एंड मोमेंटम. ओके, so the product of the uncertainty in the momentum, that is designated by delta p, and the product and uncertainty of position delta x is always constant and is equal to or greater than the h by 4 pi. Product of uncertainty of position is delta x and product of uncertainty of momentum is delta p. इन दोनों की इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा uncertainty of delta x and delta p का, that is equal to h by 4 pi, or sometimes its value is greater than h by 4 pi. That depends upon the type of particle you are studying about. Okay, so and one more thing, it is significant for microscopic bodies. Means जैसे अगर आप बात करो बड़ी बॉडीज़ के लिए, हैवी बॉडीज़ के लिए, its significance is very very less. For example, if you study the delta x multiplied by delta p product for the electron, that is equal to, for a particle of mass 9.1 into 10 to the minus 31 kg, मतलब इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं. यहाँ पे डेल्टा एक्स multiplied by delta p comes out to be 4 pi according to the uncertainty principle. तो यहाँ से डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी क्या होगा, ये कैसे आया, क्योंकि डेल्टा पी किसके इक्वल होगा, एम इंटू डेल्टा वी. मोमेंटम किसके इक्वल होता है, मास इंटू वेलोसिटी. तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम किसके इक्वल होगा, मास इंटू अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, क्योंकि मास तो सर्टेन ही होगा. ओके, सो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी कम्स आउट टू बी एच बाय 4 पाई एम. ओके, and delta x into delta v equal to, put values, m is the mass of electron, the product of uncertainty of position and product of uncertainty of velocity comes out to be 10 raised to the minus 4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. बट यही अगर आपके पास एक बड़ी मास की बॉडी होती, मतलब 1 मिलीग्राम जिसका मास होता है, हालांकि 1 मिलीग्राम इज़ नॉट वेरी मच मास, बट फिर भी इसके लिए डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी की वैल्यू क्या आती, 10 रेस्ट टू माइनस 28 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, विच इज़ वेरी वेरी लेस. तो इट मीन्स अनसर्टेन, और इतनी अनसर्टेनिटी से तो कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं इतना खास. बट स्मॉल बॉडीज़ के लिए एटॉमिक लेवल पे जो बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, उनके लिए अगर डेल्टा एक्स और डेल्टा बी का जो प्रोडक्ट है वो उतना आ रहा है, दैट इज़ वेरी वेरी ह्यूज. ओके, क्योंकि एटॉमिक लेवल पे तो जैसे एटम का रेडियस कितना होता है, 10⁻⁸ मीटर, तो एटॉमिक लेवल पे अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 10⁻⁴ आता है, दैट इज़ वेरी वेरी ह्यूज. ओके, सो मीन्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज सिग्निफिकेंट फॉर माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़. और सिमिलरली जो आपके पास डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव्स है, वो भी किसके लिए सिग्निफिकेंट है, वो भी सिर्फ माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ के लिए ही सिग्निफिकेंट है. लार्ज बॉडी के लिए जो आपके पास वैल्यू आती है वेवलेंथ की, दैट इज़ वेरी वेरी हाई. सेम गोज टू दी हिजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. ओके, तभी तो, और यही दो जो फिनोमिनाज हैं, दे आर फाउंडेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. तभी तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इज एप्लीकेबल ऑन दी, you can say, atomic particles or molecular particles. Their quantum mechanical model is not applicable to the large bodies. Okay, next, now explanation of Heisenberg's uncertainty principle. Okay, let us say there is a electron which is revolving in its orbit. Okay, this is the electron which is revolving in the orbit. In order to see this electron in the atom,
you have to fall some light on it. Okay, clear? You have to pinpoint that electron inside the atom, so that's why you have to fall a light on it. Okay, and the reflected light will tell us where is the electron. Okay, this is how we detect position of electron inside an atom. Okay, clear? Now suppose we attempt to find position of electron inside an atom by striking a photon of light, and if it is a photon of light means it will have some energy that is equal to h into nu depending upon its frequency. Okay, or you can say wavelength, because E equal to hc by lambda also. Due to this photon position as well as velocity of electron disturbed, जब इसको देखने के लिए आप इस इलेक्ट्रॉन पर स्ट्राइक करवाओगे, इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल, तो इसकी जो एनर्जी, जो इसका इम्पैक्ट होगा इलेक्ट्रॉन के साथ, दैट इम्पैक्ट इज गोइंग टू चेंज पोजीशन एज वेल एज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ओके, जिससे आप देख रहे हो लाइट से, उसकी वजह से भी इसकी पोजीशन और वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका पाथ चेंज हो रहा है. ओके, एंड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिक्स द अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा. मतलब जिस लाइट को आप देखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो इलेक्ट्रॉन को, उस लाइट की वेवलेंथ क्या है, ठीक है, वही डिसाइड करेगी कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की, इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में अनसर्टेनिटी कितनी होगी. इट मीन्स इफ लाइट ऑफ वेवलेंथ, इट मीन्स मोर लैम्डा लीड्स टू मोर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन. जितना ज़्यादा लैम्डा वाली लाइट लोगे उतनी अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगी पोजीशन में. बट अनसर्टेनिटी पोजीशन में ज़्यादा होगी, दैट्स इट. बट अगर आप ज़्यादा लैम्डा वाली लाइट लोगे तो एनर्जी उसकी कितनी होगी, एच सी बाई लैम्डा. एज वी नो दैट एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो उसकी एनर्जी कम होगी. और जब लाइट की एनर्जी कम होगी, ओके, सो उसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, ओके, वो कम होगा. अगर इम्पैक्ट कम होगा तो होगा क्या, वो इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को कम से कम डिस्टर्ब करेगी. ओके, मीन्स विच लीड्स टू द ग्रेटर सर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम. तो उस टाइम क्या होगा, जब आप ज़्यादा लैम्डा वाली, मोर लैम्डा वाली लाइट यूज़ कर रहे हो, उस टाइम पोजीशन की अनसर्टेनिटी तो बढ़ रही है, बट मोमेंटम की अनसर्टेनिटी कम होती जाएगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन के असल रियल मोमेंटम को चेंज नहीं करेगी, क्योंकि उसकी एनर्जी इतनी कैपेबल नहीं है कि इलेक्ट्रॉन के रियल मोमेंटम को चेंज कर दे. तो उस टाइम आप जो मेजर करोगे मोमेंटम, वो विद ग्रेटर सर्टेनिटी मेजर होगा, और पोजीशन में उतनी ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी ज़्यादा होती जाएगी. तभी तो बोलते हैं डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इक्वल टू एच बाई 4 पाई. अगर डेल्टा एक्स कम करोगे, मतलब डेल्टा एक्स का कम करने का मतलब क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन को कम करना, तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट ये रहना है. और अगर आप इसको कम करना चाहते हो, डेल्टा पी मतलब अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम को कम करना चाहते हो, मोमेंटम को सर्टेनली मेजर करना चाहते हो, उस टाइम आपकी पोजीशन की अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी. ओके, दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन Heisenberg's uncertainty principle. Okay, this is all about it. Now come to the numericals. A golf ball has a mass of 40 gram and a speed of 45 meter per second, but this speed is not measured with certainty. If this speed can be measured within accuracy of 2%, means 2% ऊपर नीचे हो सकती है स्पीड उसकी. कैलकुलेट दी अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन. तो बताओ इस गोल्फ बॉल की अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कितनी है. सबसे पहले हमें अनसर्टेनिटी इन स्पीड देखना पड़ेगा, वो कितना है, 2% ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड, दैट कम्स आउट टू 0.9 मीटर पर सेकेंड. मीन्स ये फॉर्मूला रहा अनसर्टेनिटी का. इसको थोड़ा एलेबोरेट किया तो यहाँ से क्या बना, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी एच बाय 4 पाई एम, ये बन गया एक्सप्रेशन. Uncertainty of velocity is given 0.9 meter per second. Mass of the ball is given, as you know, Planck's constant 4 pi. So what is value of delta x comes out to be, on solving this equation, this comes out to be 1.46 into 10 raised to power minus 33 meter. Means बॉल उस पोजीशन पे ना होके इतनी उसमें उसकी पोजीशन अनसर्टेन है,
मतलब इतना का थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकती है। क्लियर, एंड दिस अनसर्टेनिटी इज़ वेरी 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 लेस। तो तभी तो बोलते हैं कि जो डे टू डे लाइफ वाली ऑब्जेक्ट हैं उनके लिए ये जो हिजनबर्ग प्रिंसिपल है वो एप्लीकेबल, या कह लो सिग्निफिकेंट नहीं है। एप्लीकेबल तो है बट दैट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। A microscope using suitable photons is employed to locate an electron in an atom within a distance of 0.1 Armstrong. ओके, मीन्स डिस्टेंस फिक्स नहीं है बट इतना पता है कि वो 0.1 Armstrong के अंदर अंदर है। ओके, मतलब दिस इज द अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन। व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी? तो डेल्टा वी क्या होगा वो पता लगाओ। डेल्टा एक्स इज 0.1 Armstrong, उसकी पोजीशन फिक्स नहीं बताई, उन्होंने बोला कि 0.1 Armstrong के अंदर अंदर है उसकी लोकेशन। ठीक है, इट मीन्स डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 10⁻11 मीटर आ गया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो मास कितना है पार्टिकल का, वो आ गया। तो डेल्टा वी निकालना है आपने। व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ द वेलोसिटी, ये निकालना है। तो डेल्टा वी, दिस यू हैव टू फाइंड। सेम फॉर्मूला, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी इक्वल टू h/4πm। ड्राइव किससे हुआ है? बेसिक फॉर्मूले से ड्राइव हुआ ये। तो डेल्टा वी कम्स आउट टू बी from this delta x, you know this delta v comes out to be 5.8 into 10 raised to power 6 meter per second. So that's it. This is all about Heisenberg's uncertainty principle, which states that we cannot measure position as well as momentum certainly. ठीक है, जैसे बोहर ने तो बोल दिया था कि वो ऑर्बिट में लोकेट होते हैं, उसकी पोजीशन भी फिक्स कर दी सर्टेनली और मोमेंटम भी, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ओके, so that's why Bohr model fails. Okay.